So this is Newton's formula of force. F is equal to ma. Let us just apply a vector form. F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Okay. Suppose a body has having 5 kg and force is acting is equal to suppose 10 Newton. So force is equal to F is equal to ma. Force is equal to 10 Newton is equal to mass. Mass is 5 kg into acceleration. So acceleration will be 10 by 5. So 2 meter per second squared. The body will move with the acceleration of 2 meter per second if its mass is 5. दिख रहा है मुझे कि एनोटेशन noted everyone. Yes or no? Yes. एक और एग्जांपल लिखना है तो लिख लो. अगर कोई बॉडी पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है and body is moving with an acceleration of 5 meter per second square. Suppose its mass is 3 kg. So force is equal to mass into acceleration. So mass is equal to 3 kg into acceleration is 5. So force will be 15 Newton. 15. The force acting on it will be 15 Newton. Okay. Force acting will be 15 Newton. Okay. Everyone noted? What is your problem, Kanishka? सर अगर फोर्स ने दिया होगा तो फिर क्या मतलब? तो सर वो आंसर कैसे निकालेंगे? मीन्स सर फोर्स देंगे ही ना हमें. फोर्स नहीं देंगे तो 3 में से 2 देंगे ही. F, M और A में से 2 देंगे ही. हाँ.
हो जाएगा। ओके ओके सर। Noted everyone. Okay. Different type of force. Okay. वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बाय द अर्थ। बाय द अर्थ। डायग्राम नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा, जस्ट राइट डाउन। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी और वेट जो है वो एक फोर्स है। फोर्स बाय द अर्थ।
देखो okay, this is a block. This is the earth. Okay, this is the center. Earth is pulling the body. The force will be towards the center. Earth will pull the object towards its center. और हमेशा देख रहे हो मैं बॉडी के सेंटर से अप्लाई कर रहा हूँ. Just applying from the center of the body. Okay, this is the force. If मास इसका m है, इसका भी मास m, मतलब कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मैंने रखा है अर्थ के डिफरेंट. एक इंडिया में है, एक साउथ अमेरिका में है, एक नॉर्थ अमेरिका में है, एक अफ्रीका में है, एक आर्कटिक पोल पे है, एक एंटार्क्टिक पोल पे है. मान लो ऐसा कोई सिचुएशन है, तो at every point force will be towards the center of the earth, and that force is mass m into g. This force is equal to m into g, mass of that body, and g. g का वैल्यू होता है 9.81 9.81 meter second square. Okay, this is a small g, this is not capital G. इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity. Just this is the center of the earth. No, meter per second square. This is the meter per second square. F is equal to, this is the force applied by the earth on the body. Force applied by the earth on the body. Noted, everyone? Just remember all these things. Okay.
क्यों आया जी, क्यों नहीं आया जी, just not, just only remember the force applied by the earth on the body is equal to mg, m into g. If m is the mass of the body, then just multiply the mass with the g, and g has the value 9.81. नो डाउट नथिंग इसमें। ये जी क्यों है, जी क्यों नहीं है, नो, इसमें क्यों है क्यों नहीं है, बस अभी जस्ट मानो कि जी, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ on the body is mg. G has the value 9.81. This is not a capital G, this is a small g. Okay, noted. Capital G is the gravitational constant, universal gravitational constant. Noted everyone? I'm just asking. Okay. अब यहाँ पे किसी एक बॉडी को, मैं सिर्फ एक बॉडी को अगर देखूं, किसी एक बॉडी को, ओके, किसी एक बॉडी को मैं देख रहा हूँ, तो जैसे कोई बॉडी जो है वो टेबल, अरे यार, किसी एक बॉडी को मैं देख रहा हूँ, एक बॉडी जो है वो टेबल पे, कहीं भी टेबल पे हो या हवा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। This is a body resting on a table. Okay, so the table will be on the earth, table will be on the earth, so you will have to draw mg just downward, and that mg is equal actually a weight. This is the weight of the body, and mg is actually a force, actually a force. So weight is actually a force, and weight is measured in Newton, measured in Newton, N, capital N. Weight is measured in Newton. Okay. The magnitude of weight is mg. Example, अगर मास अगर 5 kg है, तो वेट जो होगा वो 5 इंटू 9.81 इक्वल टू जितना होगा, कैलकुलेट कर लो, 5 49.05 न्यूटन. Weight is 49.05 Newton. Mass is 5 kg. Mass is 5 kg. Direction of weight. Yes, you can take 9.8 also. Direction of weight. Towards the center of the earth. Okay.
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट पे बॉडी के फोर्स लग रहा है, किस पॉइंट पे, सेंटर पे ना, दिस इज द सेंटर ना, तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सेंटर पे, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो जस्ट सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी, एप्लीकेशन कहाँ है, फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, सेंटर ऑफ द बॉडी पे, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो किधर अप्लाई हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है ना, फोर्स इज अप्लाइड वर्टिकली डाउनवर्ड, जस्ट नीचे, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, so line of action, line of action is vertically downward। तुम अर्थ के कहीं भी खड़ा हो, अमेरिका में हो या लंदन में हो या इंडिया में हो, हमेशा वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, क्योंकि जस्ट तुम्हारे पैर के नीचे जो है अर्थ का सेंटर है, मतलब कि चलते चले जाओ 6400 किलोमीटर नीचे तो अर्थ का सेंटर मिलेगा। मून पे भी होगा, मून पे जी डिफरेंट होगा, line of action is vertically downward। Okay, noted everyone। सर आपने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, हर एक ऑब्जेक्ट का, हाँ, अच्छा ठीक है। तुम्हारा भी वेट जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन में, मेरा भी वेट अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो ग्राउंड पे मुझे क्या दिखेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई द लाइन ऑफ एक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके सर, थैंक यू। सर बाय सेंटर ऑफ बॉडी आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हो ना? हाँ वही होता है। हाँ तो सर अगर हम लोग उल्टा होंगे फिर भी सेंटर ऑफ मास से ही आएगा ना वो? कैसे भी रख दो वैसे ही होगा। अच्छा हाँ सर समझ में आ गया। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि सेंटर में उसका वेट कैसे रहता है बॉडी का? हर एक पॉइंट पे अप्लाई होता है, लेकिन उसको मानते हैं कि सेंटर पे, ठीक है, बॉडी के हर एक पॉइंट पे। सर फिर एवरेज मार्क्स क्या होता है, एवरेज मार्क्स क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स, हेलो, यस सर नहीं पता। व्हाट इज एवरेज, अप्रॉक्स। एवरेज क्या होता है, मतलब टोटल। टोटल, किसी को 10 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 50 रुपए है, 2 आदमी, एवरेज कितना हुआ, 60। 30 रुपीज, 50 + 10 / 2 मतलब 30 30, तो
कोई आदमी बोल सकता है ना कि 30 तुम्हारे पास है, 30 तुम्हारे पास है, एवरेज, उसको एवरेज बोलते हैं, दैट इज एवरेज इज अ सेंटर। ऐसा नहीं है कि बॉडी के हर एक पॉइंट पे नहीं लगता, बॉडी के हर एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन एवरेज जो है वो सेंटर से आता है, ठीक है। ओके सर। जस्ट ओनली नो फ्रॉम द सेंटर। सर कोई डाउट नहीं है सर। ओके, हाँ मान शानवी, yes, g will be different at different planet, g will be different at, a small g will be different at different planet, yes Yans। तो सर तो न्यूटन, तो हमारा वेट जो था वो वेट इक्वल टू मास है, वेट इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स? वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी होता है हमेशा। अब जी वैरी कर सकता है प्लैनेट टू प्लैनेट, ठीक है। तो मून पे जी का वैल्यू कम होगा, इसीलिए वेट कम होगा। Yes, Aradhya, tell me. Aradhya, बोलो। So I've heard that we can take the g value as 10. Yes, क्वेश्चन में अगर बोलेगा तब, वैसे नहीं। If question mentions the put Okay, पे sir. g equal to 10, then use 10. Otherwise, use 9.81. Okay, sir. Thank you. Okay, say here. So, wait. Second diagram. In every diagram, just vertically downward, M1G, just vertically downward from the center, M2G, just vertically downward. Weight always act vertically downward. So this is M4G, just vertically downward, M5G. Doesn't matter how block is resting on another, weight will be always vertically downward towards the center of the earth.
Okay. Next, second type of force, normal. Normal reaction. Are you getting? This is the first, this is the second. सरफेस कांटेक्ट फोर्स, सरफेस पे लगता है ये, मतलब जहां पे सरफेस कांटेक्ट में होगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगा. ओके, सरफेस कांटेक्ट फोर्स acts between two contacts. Acts between two contact surface. अभी कुछ मैंने बताया नहीं है, अभी भी डाउट हो गया तुरंत. अभी मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, जस्ट ड्रॉ करो डायग्राम, क्योंकि मैं जस्ट नेक्स्ट पेज में जाऊंगा. आराध्या, Sir, what is BW? Between. यस between, this is between, this is short Thank you, form. sir. This is between, B by W मतलब between two surface contact surface. चलो मुझे देख लो थोड़ा सा. Can you see me? दो सरफेस है ना, मैं इसको जस्ट लेके आया. तो ये सरफेस क्या चाहता है, इसको इधर पुश करना. अंडरस्टूड? दिस सरफेस ट्राइज टू पुश दिस सरफेस दिस, और ये सरफेस क्या चाह रहा है, इधर इसको पुश करना. तो दिस सरफेस अप्लाइज फोर्स ऑन दिस सरफेस इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस सरफेस अप्लाइज. सर आई कांट सी यू. बहुत अच्छा. राइट कॉर्नर में देखो मेरा पिक दिख रहा, वीडियो स्ट्रीमिंग मेरा, उस पर क्लिक करो, मैं आ जाऊंगा. और फिर उसी पे क्लिक करोगी तो इस पे आ जाऊंगा स्क्रीन पे. Am I visible?
किसी को नहीं दिख रहा? श्रेयस सिंह, no, my video is not paused. Okay. Okay. So दो सरफेस है, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये क्या चाहता है? ये सरफेस, ये अगर मैं फर्स्ट बोलूं ये सेकंड, तो फर्स्ट सरफेस ट्राइज टू पुश द सेकंड सरफेस इन दिस डायरेक्शन एंड सेकंड सरफेस ट्राइज टू पुश दिस सरफेस इन दिस डायरेक्शन. नहीं, बोथ सरफेस आर पुशिंग टू ईच अदर. ऐसा नहीं जैसे तुम किसी वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है? इफ यू आर सपोज यू आर पुशिंग अ वॉल, इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम ही सिर्फ पुश कर रहे हो वॉल को, नहीं, वॉल भी तुमको पुश कर रहा है. वो अगर सपोज कि समवन स्लैप यू, ओके, सपोज समवन स्लैप्स यू, ओके, तो ये नहीं समझने का कि अच्छा उसने मारा, नहीं मैं भी मारा. क्यों? क्योंकि सपोज कि ये जो है, ये क्या है, उसने ऐसे मारा, तो इस, ये जो स्लैप है, ये जो हैंड है, इस हैंड के कारण तुम्हारे चिक पे इधर फोर्स आया, नहीं आया, इधर फोर्स हुआ. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसने फोर्स लगाया इधर, नहीं, उतना ही फोर्स इसने भी इस पे उधर लगाया. समझ में? सपोज कि दिस hand applies 10 Newton on the chick in this direction, then your chick will apply the 10 Newton on this hand in this direction. प्रॉब्लम ये है ना कि ये सॉफ्ट है तो ज्यादा जोर से लगता है, ठीक है? अब ये जो है, ये सॉफ्ट नहीं है, तो इसमें पता नहीं चलता है. अच्छा, ये तो पता नहीं चला, क्या समझे? यही हैंड को तुम टेबल पे मारो तो फिर चोट लगेगा तुमको, नहीं होगा? यू कैन फील द पेन. लेकिन यही गाल पे मारो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा. क्यों? Of course, both applies force on each other in equal magnitude, but in opposite direction. Okay? लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो 10 न्यूटन आपका गाल नहीं सह पाता है, 10 न्यूटन आपका हैंड सह लेता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि अच्छा हैंड पे कोई फोर्स भी लगा है, लेकिन दोनों पे इक्वली फोर्स लगता है. दैट इज एक्चुअली a Newton's third law. You will study the Newton's law. This is actually a Newton's third law. To every action there is an equal and opposite reaction. just remember this thing. न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी भी आप पे फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही. समझ गए? न्यूटन्स इसलिए फेमस है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर सपोज कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ फर्स्ट बॉडी, देन फर्स्ट बॉडी आल्सो अप्लाइज अ फोर्स ऑन यू. ऐसा नहीं कि आप किसी वॉल को प्लीज डोंट राइट. जब बताते रहता हूँ तो बस राइट लिखते रहना है, फिर बाद में आके सर समझा नहीं. अबे सुन तो लो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अब न्यूटन थर्ड लॉ मैंने बोल दिया, जो लिख रहे होंगे उनको पता भी नहीं चला होगा क्या बोला मैंने. कितना बार बोलता हूँ कि पहले ये रखिए उसके बाद.
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा नहीं कि वो गांधी जी वाला रूल ही नहीं फॉलो करता है कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल बढ़ा, तो ये वाला फॉलो ही नहीं करता न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, वो बोलता है एक मारा तो दूसरा भी उसको ही पड़ेगा, और तुरंत उसी समय पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी मार दिए फिर 4 दिन के बाद उसको मारेंगे, ऐसा 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 सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, डेप्थ रखते ही नहीं है भाई अपन, न्यूटन्स थर्ड लॉ डेप्थ रखता ही नहीं है। जो होगा सो उसी समय, उसने मारा तो हम भी मारे। ठीक है ना? इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन वन second body, if first body applies a force on second body, then second body also applies force on the first body, but opposite in direction. First body अगर इधर force apply कर रहा है तो second body इस पे इधर apply करेगा। That is a Newton's third law actually. So this is a famous quote: to every action there is an equal and opposite reaction. This is a famous quote. Okay, this is a Newton's third law. Understood? This is a Newton's third law. ऐसा नहीं कि वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ तो नहीं, वॉल नहीं, वॉल भी पुश नहीं कर रहा, वॉल भी उतना ही फोर्स से पुश कर रहा है आपको जितना आप उसको पुश कर रहे हैं। समझ में आया? तो अगर दो सर, अब आप बोलिएगा सर ये क्या हो गया, तब तो अर्थ ने अगर बॉडी पे वेट लगाया, अर्थ ने अगर बॉडी पे mg फोर्स अप्लाई कर दिया, तो बॉडी भी अर्थ पे लगाएगा mg। ऑफ कोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपन उसको नहीं दिखाते हैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है। Of course, Newton's law वहाँ भी, Newton's third law is also applicable in that case also. If Earth applies mg weight on a weight on a body, if suppose कि अगर अर्थ मेरे बॉडी पे, अगर सपोज कि आपका मास कितना है, किसी का मास 70 किलो तो होगा ही, आप भी कैसे सही से मोटे होगे, चलो 50 मान लेते हैं, चलो 50 भी नहीं, चलो 10, तो ज्यादा कम हो गया, 30, okay, 30, and suppose g is 10. I'm not taking 9.8, just taking 10. So the force will be 30 into 10 will be 300 Newton. So Earth is applying 300 Newton on you in the downward direction, or you can say towards the center of the Earth. So you are also applying force on the center of the Earth in the upward direction. अरे फिर देखो अस्मी, मैं भी क्या बता रहा हूँ और वो क्या डाउट पूछ रहे हैं। अस्मी प्लीज आप आइए, जस्ट ओपन योर वीडियो स्ट्रीमिंग। अस्मी अस्मी, where is Asmi? Just open your वीडियो। जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, देन फर्स्ट लिसन, उसका डाउट मैं लूंगा ही। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं हुआ है कि डाउट नहीं लिया हूँ, डाउट तो लिया ही हूँ ना हमेशा। तो फर्स्ट लिसन ना, देखो ऐसा, जस्ट उस पे आ जाओ, सबको उस पे आओ, उस पे शेयरिंग स्क्रीन पे आओ, just come to the sharing screen. Okay, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एक वेट है और ये अर्थ है, सेंटर है, तो अर्थ ने अगर mg अप्लाई किया इस पे, तो ये बॉडी भी इस पे mg अप्लाई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसा नहीं होता है, अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसीलिए पता नहीं चलता, लेकिन इसका मास बहुत कम है इसलिए पता चल जाता है। अंडरस्टूड? Yes, exert not equal force in magnitude but opposite in direction. If you are telling equal force, then force has direction also. So direction are opposite, so you cannot write equal force. Equal
magnitude of force. This is the correct statement. Both body applies equal force but in opposite direction. Understood? समझ में आया क्या? अरे बता भी दे. Yes. अरब. तो चलो अब नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ जाएगा. चलो क्विक. नाम से ही क्लियर है. रिएक्शन नहीं, नाम में है ना रिएक्शन. मतलब किसी का तो रिएक्शन होगा ही. नाम में तो है ना रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन. सो इट विल बी रिएक्शन फोर्स. मतलब किसी को ये मारा होगा तो वो भी रिएक्शन लगाया होगा. अंडरस्टूड? और नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर. नॉर्मल मींस क्या? परपेंडिकुलर. सो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर एंड रिएक्शन मतलब किसी को मारा तो वो भी मारा है इसको. अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? आगे चले क्या? ओके चल. अब चलो. एवरीवन नोट इट डाउन. लेट मी एक्सप्लेन. अब बताओ. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस. तो अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को इस पे रखूंगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा तो मैं पहले फर्स्ट सरफेस की बात करता हूँ. फर्स्ट सरफेस, सॉरी दिस इज द सेकंड सरफेस. तो सेकंड सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेगा कौन? फर्स्ट सरफेस. सो फर्स्ट सरफेस विल अप्लाई द फोर्स in downward direction, but it will be perpendicular to the surface. It will be perpendicular to the surface. It will be perpendicular to the surface. So this is the action by the first surface on second. Understood? This is the first action by first surface on second. This is the action by first surface on second. Let us there. कोई फर्क नहीं पड़ता. मोड अप्लाई कीजिए. बोथ विल बी इक्वल. Doesn't matter, both will be equal. अब देखो यहाँ. सो देखो दूसरे डायग्राम में जा रहा हूँ. वेट. जैसे ये बॉडी था और ये सरफेस, इस पे मैं रखने जा रहा हूँ इसको. मतलब कि ये इस पे रेस्ट कर रहा है. सपोज कि इस तरह से रेस्ट कर रहा है. So this is a surface and one body. इसका सरफेस कैसा होगा? दोनों सरफेस कांटेक्ट में है. तो ये जो है ये बॉडी का सरफेस है. Let us call it first body. तो this is the first. और ये सेकंड सरफेस है. This is the second surface. टेबल का सरफेस होगा ये. Let us call it as second. जैसे ही मैं इस पे जैसे ही यहाँ पे अप्लाई किया तो ये बॉडी इसको पुश कर रहा होगा, ये वाले सरफेस को. तो ये वाले सरफेस को पुश कर रहा होगा तो ये इस पे नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. कौन इस पे नीचे फोर्स अप्लाई कर रहा? तो दिस इज द फोर्स बाय द फोर्स अप्लाइड. सॉरी, फोर्स अप्लाइड लिख देता हूं. फोर्स
applied by first surface in contact on the second surface in contact. Understood? लेकिन अब इसने तो फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब ये बोलेगा अच्छा तुमने अप्लाई कर दिया तो मैं भी अप्लाई करूंगा, तो ये जो है ये सरफेस ये इस पे अप्लाई कर दिया, सो दिस इज द फोर्स applied by the force applied by the second surface in contact on the first surface in contact. Okay, first surface in contact. This we name this as a n, and this is also n. Let us call it as n1. This is call it as n2, n1 and n2. नॉर्मल है, इसीलिए नॉर्मल मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ भी एंगल देखो 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल मीन्स perpendicular to the contact surface. Okay, okay. So which force is acting on the block? Which force is acting on the block? N1 or N2? Which force is acting on the block? N1 or N2? N2. N2 is acting on the block. N1 is acting on the table. N1 is acting on the table. ब्लॉक जिस टेबल पे रखा हुआ है, टेबल के सरफेस पे N1 एक्ट हो रहा है, और टेबल ब्लॉक के लोअर सरफेस पे N2 एक्ट हो रहा है, तो ब्लॉक पे जो है वो N2 फोर्स एक्ट हो रहा है. So N2 force is acting on the lower surface of the block and N1 is acting on the upper surface of the table, जिस टेबल पे रखा हुआ है या जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है. ओके, okay, understood. अब बताओ, एक बात बताओ.
ये नॉर्मल रिएक्शन आता क्या, जब अगर ब्लॉक टेबल पे नहीं रखते तो N2 ब्लॉक पे N2 आता क्या, N1 या N2 नहीं आता, सरफेस ही कांटेक्ट में नहीं आता, तो मतलब एक्शन कौन कर रहा है, ब्लॉक आके कर रहा है। एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, मारने के लिए कौन आया है, ब्लॉक आया, ब्लॉक इज डूइंग एक्शन। So who will feel the reaction? Who will feel the reaction? Who will feel the reaction? Block only. Block is doing action on the surface of the table. So surface of the table will react on the block. Okay? क्योंकि ब्लॉक आ रहा है ना भाई, ब्लॉक आकर के उस पे रख दिए तुम, तो ब्लॉक ने एक्शन कर दिया ना उस पे। अगर ब्लॉक नहीं आता तो टेबल को कोई मतलब नहीं था। तो block is doing action on the surface of the table, so table will react on the surface of the on the contact surface of the block. Understood? So block is experiencing the reaction, and this is normal. So this is normal reaction on the block. So just I am writing the 1 points. Normal reaction on the block is acting on the contact surface. कॉन्टैक्ट सरफेस पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी अप्लाई कर दिए। समझ में आया, समझ में आया? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नोटेड एवरीवन? Okay, let's move to the next point. अब यहाँ देखो, सपोज दिस, अरे यार कितना गंदा बना दिया।
सपोज अ ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है रखा हुआ, हटाओ हटाओ ऐसे नहीं, इसको डिलीट करता हूँ, हटाओ। दिस इज द ब्लॉक, this is the block, this is suppose this type of the wedges, this type of wedge is there, okay, this is the first, this is the second, मैं यहाँ पे इसका ये लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, इस पे बना रहा हूँ, अबे यार अरे क्या हुआ, suppose this is 1 2 3 4, tell me which one is correct on the block, which one is correct on the block, which one should be the normal reaction on the block, which one should be the normal reaction on the block, which one should be the normal reaction on the block, on the block, on the block, aren't you getting my point, on the block, wow, मैं ब्लॉक पे पूछ रहा हूँ तो सरफेस पे बता रहे हैं, मतलब कि इसको वेज बोलते हैं, इसको वेज, वेज, that's block, so it's a wedge surface, it's a wedge surface, this is a block, which one is correct on the block, which one is correct on the block, yes 2 is the correct answer, 2 होगा, क्यों होगा 2, क्योंकि normal reaction always act perpendicular to the surface, normal reaction always act perpendicular to the surface, so normal reaction is the perpendicular, and surface कौन सा contact में है, this surface is, यही surface contact में, so ये surface contact में, तो ये surface के perpendicular यही होगा, this line is the perpendicular to this, so second is correct, okay, not in upward direction, मैंने कहीं बोला है कि upward direction में है, no, मैंने सिर्फ यही बोला है कि normal reaction is always perpendicular to the surface in contact, perpendicular to the surface in contact, मतलब जो contact surface है उसके perpendicular है, तो surface कौन सा contact में है, this surface are in contact, तो जो surface contact में है उसके perpendicular है, understood, अब बताओ second surface पे contact में कौन सा है, सेकेंड सरफेस में कांटेक्ट में कौन सा है, तो अब फोर्थ कौन बोल रहा है, अब भी फोर्थ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता फोर्थ, क्योंकि फोर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द surface, so fourth is wrong option, so third will be there, so third is the perpendicular to the surface in contact, understood, so third and this is correct, so let us call it n, and let us call this as n1,
देखो यहाँ पे n और 2 और 3 जस्ट 2 and 3 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है या नहीं है? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके अब अभी मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो नॉर्मल रिएक्शन is perpendicular to the surface in contact. Surface in contact. कौन सा सर? क्या आप फिर से बताओगे कि आंसर ये कैसे है? अभी मैंने बताया ना कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे मैंने रखा, तो इस सरफेस को ये क्या करेगा? इधर पुश करेगा। तो ये सरफेस बोलेगा अच्छा मुझे पुश कर दिए तो मैं भी तुम्हें पुश करूंगा, तो ये इधर पुश कर देगा इस सरफेस को, तो दोनों पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। अंडरस्टूड? सिंपल थिंग नहीं? जैसे तुम किसी भी सरफेस पे रख रहे हो तो सरफेस को पुश कर रहे हो ना। नाउ नेक्स्ट डायग्राम, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट डायग्राम, ओके। First and second option is wrong, that because they are not perpendicular to the contact surface. Now next diagram. Suppose I am drawing this surface. I am just putting one block here, one block here, one block here. Okay, this is the first block. So this is the first block. The second, this is third. Okay. Draw normal reaction on 1, 2 and third block. कैसे? थर्ड ब्लॉक पे जो जैसे है बॉडी वैसे ही रखेंगे। अंडरस्टूड? जो बॉडी जैसे है वैसे ही। तो फर्स्ट ब्लॉक कैसे है? फर्स्ट ब्लॉक ऐसे, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक एक्चुअली क्या किया होगा? फर्स्ट ब्लॉक जो ये सरफेस है उसको क्या किया होगा? पुश किया होगा। तो ये सरफेस क्या किया होगा? उसको ही पुश किया होगा। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग? जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक क्या किया होगा? इसको पुश किया होगा इधर। तो ये सरफेस जो है, ये सरफेस क्या किया होगा? ब्लॉक के ये सरफेस को क्या करेगा? पुश करेगा। तो ब्लॉक के ये सरफेस को पुश करेगा। यहाँ पे ध्यान दो,
कि मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूँ फोर्स कहाँ से दिखा रहा हूँ, फोर्स जो है वो सरफेस से दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैंने फोर्स को सरफेस से दिखाया है क्योंकि ब्लॉक फोर्स जो है वो सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। तो जस्ट ड्रॉ डायग्राम नीटली, एकदम सही से डायग्राम बनाना है। फोर्स जो है वो सरफेस से है, सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, सपोज n। ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है। सेकंड ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, सेकंड। अब बताओ सेकंड ब्लॉक जो है, ये सेकंड ब्लॉक, ये क्या हो गया, सेकंड ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक पे क्या होगा, सेकंड ब्लॉक है तो ये देखो सेकंड ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ये वाले सरफेस पे ऐसे। तो ये सरफेस को सेकंड ब्लॉक क्या होगा, ऐसे पुश किया होगा तो ये सरफेस क्या करेगा कि इस ब्लॉक को ऐसे पुश करेगा उसके सरफेस को। तो इसके सरफेस को पुश करेगा तो दिस इज थर्ड दिस। तो थर्ड जो है, थर्ड का देखो, थर्ड ऐसे, थर्ड इस पे रखा हुआ है तो थर्ड विल पुश दिस surface in this direction, so this surface will push this block in this direction. So this is the all are perpendicular, you can see all are perpendicular. Okay, तो अब मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन का can be different in different cases, different can be different in different questions, different question, ठीक है ना। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा, अलग वैल्यू होगा, इसमें अलग वैल्यू होगा, इसमें अलग वैल्यू होगा। ओके, इन एवरी डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते अभी, ठीक है। mg का पता था कि mg अप्लाई होता है वेट में, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं बता सकते अपन। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ओके, हैव पेशेंस। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface, understood। डायरेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है नॉर्मल रिएक्शन, कहाँ पे अप्लाई होता है नॉर्मल रिएक्शन, कहाँ पे अप्लाई होता है। नॉट ऑन द सेंटर, ऑन द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस, जहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस होता है वहां पे अप्लाई होता है, ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, लाइन ऑफ एक्शन भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, line of action is perpendicular to the surface, line of action is perpendicular to the surface। ओके, मैंने जितना बताया है ना, अगले क्लास में I don't wanna hear any excuse, okay, कि सर
ये क्या हुआ नहीं हुआ, just go through the recording again and again. I explained everything. Okay, so in the next chapter, understood? In the next chapter, in the next lecture, we will cover a spring force, tension in the string. Okay, FBD, free body diagram, everything. What is the free body diagram? Because some questions is there in your exercise, so I will tell you what is the free body diagram and how will you proceed to solve the question. Okay, so just have patience. ठीक है? क्या है? मजा आया क्या? यस अद्य सर आपने जो डायग्राम पहले बनाया था जिसमें एक वेज था और एक बॉक्स था, उसमें आपने वो नॉर्मल के लिए बोला था, वो मुझे समझा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए वो दोनों फोर्सेस रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटी को भी ले तो ग्रेविटी फिर डाउनवर्ड होगा हमेशा, सेंटर से हाँ होगा डाउनवर्ड, और बॉक्स का उसका ऑपोजिट अपवर्ड। नहीं, अपवर्ड क्यों? डाउनवर्ड ना, ग्रेविटेशनल हमेशा डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, लेकिन सर आपने बोला था न्यूटन का वो लॉ है कि एवरी तो ग्रेविटी वो तो अर्थ पे होगा, लेकिन बॉडी पे तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो Body- बॉक्स का एक ही फोर्स रहेगा, वो नॉर्मल नहीं, तो के आएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, जस्ट हैव पेशेंस। ओके सर एंड वन मोर थिंग, हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने बॉक्स को फ्लोर पे ड्रॉप किया तो वो वापस ऊपर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग रबर बॉल लिया और हम उसको ड्रॉप करें तो वापस ऊपर आता है। वो इससे रिलेशन है आगे, वो इस फोर्स से रिलेशन है या कुछ और? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने रबर बॉल लिया और उसको फ्लोर पे ड्रॉप किया तो वो उसके बाद वो बाउंस करके ऊपर आता है, वो किस रीजन से होता है? फिर इससे रिलेटेड नहीं है ना? नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, अगर बाद में पहले नॉर्मल रिएक्शन समझ लो थोड़ा अच्छे से। उसमें भी सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही अप्लाई होता है। ठीक है, ओके लेकिन ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे बॉल जो है, बॉल एक्सक्यूज हुआ, ठीक है, तो बॉल जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, नीचे लगा, लेकिन बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, ऊपर लगा। ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो बॉल पे जो ऊपर लग रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन इतना ज्यादा होता है कि ब्लॉक के मास से ज्यादा हो जाता है, mg से ज्यादा होता है, जिसके कारण ब्लॉक ऊपर निकल जाता है। बताऊंगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। So how was the lecture today? कैसा था लेक्चर? तो ज्यादा ही टफ कंसेप्ट हो गया क्या आज? आप लोग बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूँ। देखिए, जस्ट आई कंप्लीटेड ओनली टू forces only.